Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. I request every one of you to kindly keep your videos on. Kindly turn on your videos. And please mention the name of your state if you haven't mentioned in the Zoom profile. कमलेश साहू आप अपना स्टेट मेंशन कर दीजिए. आफरीन please mention your state and kindly sit in a silent place please, every one of you, such that no one should get disturbed. Good evening, everyone. Kindly please keep yourself muted. Every one of you, kindly keep your videos on. Please turn on your videos. Turn on your camera. So we'll be starting the session within next 1 minute. Every one of you, kindly keep your videos on. Keep your camera on, please, because we won't allow anyone to stay here without a camera because it's a counseling session. The counselor will be should know you. It's not a luka chippy type of a class कि आप चुपके से आओगे चुपके से चले जाओगे. It's for your benefit. If you want to get benefited, make sure you open up. Otherwise, we won't be able to help you out. Since it's a free session, that doesn't mean that you will be taking the classes for granted. Please utilize the time. Your time is also very precious. Our time is also very precious. Since you are coming here and devoting your time, make sure you take the maximum benefits out of it. Otherwise, you can prepare of your own self. और आप तो अपने कुछ तो करते ही हो, खुद से कर सकते हो. Okay. So now I'm allowing everyone to unmute. So kindly sit in a silent place. शांत जगह पे बैठिए. And ma'am, over to you. Everyone, please keep your cameras on. Sit in a silent place and with full concentration attend the class. It's we have arranged the class for you. It's not for us. It's for you. If you want to get benefited, take it. If not, no problem. Asha ma'am, can you please unmute? So, very good evening to everybody here. A warm welcome. And always I tell this is your decision to be here. प्रभास सर वो पिक थोड़ा फ्रंट में लाएंगे. Yes, ma'am. Before that, please, So, Afreen, Kamlesh should Sahu, I Gauri. wait? Already 12 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, so we can start already. We are Uh, like completing more than 6-7 minutes. okay, okay. So Kamlesh Are Sahu, you ready, Afreen. my dear students? Excited? Yes, Yes. ma'am. Tell me Yes, yes. ma'am. Unmute Yes, ma'am. and tell yes. I'm ready. Unmute yourself and tell I am ready. Yes, ma'am. I'm ready. आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं? प्लीज चेक इट. Yes, Yes, ma'am, we ma'am. can.
Yes, ma'am, we are able to unmute. अनम्यूट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. पुष्पलता, can you unmute and tell? Yes, ma'am. I Yes, am ma'am. ready so that I know. Yes, ma'am, I am ready. आवाज नहीं आ रही है आपकी, Hello. Yes, ma'am. I am ready, कुछ ma'am. इशू हो रहा है. अताशी, अब्दुल्ला Yes, ma'am. और बाकी Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, Yes, आई एम ma'am. रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू कम ऑन कैमरा प्लीज. फटाफट सभी जल्दी से अब कैमरा पे आ जाओ, मैम आपका क्योंकि स्पीकर काम प्रभास कर सर रहा जो है? बच्चे कैमरा पे नहीं रहेंगे उनको हटा देंगे. उन्होंने हेलो ऑलरेडी मैसेज में दिया है मैम, कि जो आपका बच्चे कैमरा में नहीं दिखेंगे उनको, आपको नहीं तो पर्सनल मैसेज करना होगा. विद सम रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड इट विथ कैमरा, नहीं तो सर आपको हटा देंगे. मैम So आप that is आवाज my सुन पा रही personal है? रिक्वेस्ट कि जल्दी जल्दी आप कैमरा ऑन कर लो. Hello, ma'am. मैम आप Wonderful. Thank you आवाज so much. जस्ट 1 सेकेंड मैम, आवाज So now we are ready. Let's move ahead. अभी आपको एक पिक्चर दिखाई गई, सबने देखी? एक मिनट. Yes, ma'am. मैम अब आप आवाज सुन पा रही है? हाँ, मुझे अपनी पिक्चर क्यों नहीं दिखी? मेरी फोटो आपको दिख अच्छा रही है? अच्छा, हाँ ठीक है. मैम, अब सुन पा रही है ना आप? मेरे साइड से ही कुछ ना इशू था. मैम Sorry for that. आप सुन पा रही हैं आप? So अभी आपने एक पिक्चर देखी, सबने देखी? I want one person to take initiative and describe the picture. जो आपको समझ आया, कुछ भी अगर समझ आए उस पिक्चर को देखकर, तो आप उसको एक दो लाइन में डिस्क्राइब करें. Only one person have this opportunity. Use this to enhance yourself. I consider all of you as an IAS officer. मैंने पहले भी बताया है. So इतना टाइम लगना नहीं चाहिए कि एक, समझो आपके इंटरव्यू में ऐसे ही चीजें पूछी जाएंगी. मैम आप कौन से पिक्चर की बात कर रही है? जस्ट कुछ वेन भी बताओ, जो दिखा उतना ही बताओ. पिक्चर था क्या, लिटरली वो पिक्चर क्या था? मैं सिग्निफिकेंस नहीं पूछ रही हूँ, उसका मतलब नहीं पूछ रही हूँ, उसकी कहानी नहीं पूछ रही हूँ. मैम वॉट यू सॉ, जस्ट डिस्क्राइब इट. एक बच्चा आ जाओ बाहर एटलीस्ट. Dear students, kindly wait for 2 minutes. Ma'am is correcting the speaker. Ma'am was talking about this picture. आप लोग सब ये picture थोड़ा सा देख लीजिए. Everyone can see this picture? Can everyone Yes, see? sir. Okay. So by the time ma'am No, joins with the speaker, then you process this image in your mind. अभी आप थोड़ा बोलना. सर, प्रभा सर, जस्ट मैम अब सुनाई दे रहा है आवाज? चेक करिए तो आपकी आवाज आ रही है कि नहीं मेरे तक.
मैम आवाज आ रही है अब? हेलो? I'm not able to hear anything. एनी स्टूडेंट इन द कैमरा प्लीज वो I don't हाथ know से थोड़ा what is सा the technical glitch I am having. मैम को थोड़ा सा देख। हेलो? Yes, Pushpalata, just unmute and tell so that I can know कि मेरी आवाज आ रही, आपकी आवाज मुझे आ रही है. Ma'am, I am audible Oh now? my God. Still not able to listen. No, no. Yes, ma'am. Not audible, I think. Just थोड़ा मैं देखती हूँ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई. Give me 1 minute more. जो लोग नए हैं, लेट मी टेल यू, दिस इज द थर्ड सेशन, ये तीसरा सेशन है। पहला दो सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपने मिस किया है तो पहला दो सेशंस आप अटेंड कर लीजिएगा, यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज सिंस इट्स अ काउंसलिंग सेशन, इसीलिए हम लोग प्राइवेसी कंसर्न्स है, क्योंकि आप लोग का इंडिविजुअल इश्यूज है, सो वी डोंट वांट दैट टू गेट पब्लिक। तो इसलिए जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे वी विल कस्टमाइज इट। फॉर एग्जांपल सौम्या श्रीवास्तव का इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, which might be possible that she doesn't want to share in the public. So that is why we want to respect the privacy of her, and we are keeping this internal, because आपकी प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आपको इस पे वर्क करना है। खुद का प्रॉब्लम दुनिया को बता करके क्या ही करोगे, है ना? बताओगे, दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे और उल्टा सीधा ये चीज होगा। तो बेटर है आपका जो इश्यूज है, यू जस्ट रेज योर इश्यूज टू अस, वी आर देयर फॉर योर हेल्प इन योर स्टडीज। कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा इश्यूज हो रही थी ना, सो दैट इज वाई द सेशन इज देयर बीइंग कंडक्टेड। मैम आप सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक ओके सब कुछ इशू था, सेटल हो गया. ओके ओके, वन रिक्वेस्ट, कमलेश साहू, आफरीन एंड गौरी, प्लीज कम ऑन योर कैमरास, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। ओके मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू. आई एम रियली सॉरी, हमारा इतना समय थोड़ा वेस्ट हुआ, बट स्टिल दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ. मिनट्स आपने ना कितनी. सो आई वांटेड 1 पर्सन टू स्पीक, ये मैं कह रही थी, आप बोल रहे थे और मैं सुन नहीं पा रही थी. सो कम ऑन 1 पर्सन. यस. अभी Ma'am, there अभी तो was, आ रही है मुझे आवाज. यस yes, पुष्पलता, गो ma'am. अहेड. गो Ma'am, अहेड. there was a one man and one animal. So initially the animal was small, so man does not need more strength. After that, when animal got big, then man need more strength. So I think it's about a strength. करेक्ट, And यू गॉट द लाइक ना मेन जो बेस लाइन है आपने पकड़ा है. एंड थैंक यू सो मच. मैं सबसे ज्यादा खुश क्यों हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया बोलने का. मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म आपको प्रिपेयर कर रहा है, ये कोई स्टोरी, बाकी सारी चीज. Ma'am, Hello, ma'am. ma'am, your voice is not audible, ma'am. Let me connect with ma'am, just students kindly wait 1 minute. तब तक आप थोड़ा देख लो बच्चों को. हाँ हाँ, एक मिनट. मैम इज ज्वाइनिंग शॉर्टली डियर स्टूडेंट्स। ओके चलिए, अब वो तब तक मैं प्रोसीड करता हूँ, बिकॉज द स्टार्टिंग पार्ट इज दैट आपने इमेजेस देखा ग्रुप में, मैंने वो फोटो भेज दिया है, चेक कर लीजिए। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ग्रुप में वो इमेज है। तो पुष्पलता ने बता दिया वो स्ट्रेंथ का है। एनी अदर स्टूडेंट, आप बताइए आपका थॉट क्या है, मतलब उस फोटो Sir, को देख करके। यस sir, आतिश जी, this is यस। about the string. हाँ चिंटू Sir, बोलिए। that is There is
हाँ, यस आतिशी बोलिए। Sir, a man is carrying a bull. So, in the initial stage, it is so small, and gradually the burden, that is the bull, is very big. But the man carries it very easily. ओके, वेरी गुड। चिंटू मैम, अब आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। आतिशी ने कुछ बोला था, आतिशी फिर से रिपीट हाँ, मैंने सुना, उसका पूरा तो नहीं सुना, बट मैंने सुना, एंड ओके। आई गॉट द पॉइंट की व्हाट यू आर शेयरिंग। थैंक यू। सो ये एक स्टोरी है। मैं ब्रीफली बताती हूँ, आपने मेन लाइन तो जरूर समझ लिया है। ये स्टोरी है साउथ इटली की, लाइक बहुत पुरानी स्टोरी है। एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द हिस्ट्री। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा, उसके घर के बगल में ना एक बछड़ा, एक बेबी का काफ है, जन्म लेता है। एंड ही गॉट दैट एफिनिटी विद उस काफ के साथ। और वो हर दिन उस बछड़े को उठाता है, गोद में लेता है, और अपने कंधे पे उसे बिठाकर उसे घुमाता है, एक राउंड लेता है, एक या दो राउंड लेता है जो भी। और ये जो काम ये करता है, एवरी डे कर रहा है वो, नॉट इवन मिसिंग वन सिंगल डे। और ये प्रोसेस चल रहा है 4 years कंटिन्यूअसली। अब थोड़ा यहाँ पर पॉज लेते हैं और समझते हैं कि 4 साल में ये छोटा सा बच्चा 4 साल उसके एज में ऐड हो गया। और 4 साल में जो ये बुल, ये तो जो काफ है ना, ये बन गया बुल। बट ये स्टिल आराम से उस बुल को अपने वैसे ही उठाता है, कंधे पे बिठाता है और घुमाकर लाता है। बट शुरू में तो लोग उसे देखकर हंसते थे, ये बचपना कर रहा है क्या, उसका बचपना है। अब ये जो कर रहा है, बड़ा बुल को अपने कंधे पर लेकर जो घुमा रहा है, और जब अब इसे पब्लिक देख रही है, तो ये मैसेज पूरा फैल गया, एक न्यूज बन गया। क्योंकि एक ह्यूमन स्ट्रेंथ में एक बुल को उठाना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड वो बिल्कुल आराम से कर रहा है, उसके लिए तो बिल्कुल जैसे वो छोटा बछड़े बछड़े को उठा रहा था, उसी तरह वो उस काफ को उठा रहा है। अब इस स्टोरी के एनालिसिस आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। यू थिंक कि एक बहुत बड़ा मैसेज इस स्टोरी के अंदर है, आप उस हिडन मैसेज को निकाल पाओगे? अगर कोई दो बच्चा इस स्टोरी से जो लर्निंग मिली है उसको शेयर करे, और उसे कैसे हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में कोई, अपार्ट फ्रॉम जो 2-3 बच्चे ने बोला है, उसको छोड़कर कोई नया 2 बच्चा बोले। टेक दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो। गो अहेड इकरा। यस मैम। मैसेज इज कि जितना वेट आप कैरी इजली कर सके उतना ही कैरी कीजिए। फॉर ओके, दिस एग्जांपल इज ऑफ दिस कंसिस्टेंसी। ओके, यू गॉट दिस मैसेज। एनी अदर पर्सन? गो अहेड, कौन बोल रहा है? This is about the consistency. He's doing regularly from when the bull is just a birth calf. And now, on the daily basis, he's carrying, and now he got that much strength because of his करेक्ट, यस consistency. यस। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा, वो कुछ प्लान करके नहीं कर रहा था, बट अनोइंगली किए जा रहा था। धीरे धीरे उसका जो मसल है, बॉडी की मसल है, वो बिल्ट हो रही है एवरीडे बेसिस पे। आप यहाँ पे सब है, लेडी बच्चे हो, मेल फीमेल सभी हैं। क्या हम बॉडी 6 days में बना लेंगे, या 2-3-4 दिन में, एक वीक में अपनी पूरी बॉडी बिल्ड कर लेंगे, चाहे हम कितना भी प्रोटीन पाउडर ले लें, चाहे हम कितना भी पूरे दिन जिम में रहें? क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? No, ma'am. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सेट एक टाइम जोन, एटलीस्ट 6 month का आपने टाइम लिया, एक रूटीन सेट किया, अपना खाना पीना, प्रोटीन, डाइट एंड द एक्सरसाइज का टाइमिंग, एंड यू नो कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने बॉडी को बिल्ड करके। ऐसे ही जिम में जाकर बस जिम में कुछ भी कर रहे हैं नहीं होता है। ठीक है, उसकी जो वेट का, जो आप लोग शायद मुझसे बेटर समझ रहे हो, किस तरह से वेट उठाना है, किस तरह से हैंड के लिए, किस तरह से थाइस के लिए, किस तरह से अपने स्टमक, सारी चीजों का एक सेट है। आई थिंक आई एम राइट।
ठीक है। तो ऐसे ही जिम में पहुंच के काम नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह हमें अगर अपने माइंड के मसल को बिल्ड करना है तो वी हैव टू वर्क लाइक दैट। हमें फिजिकल जिम में नहीं जा रहे हैं, बट हमें अब मेंटल जिम करना पड़ेगा। इस स्टोरी में उस बच्चे ने डेली बेसिस पे अपने बॉडी के मसल्स को बिल्ड किया। अगर वो कितना भी स्ट्रांग इंसान ले लो, आप किसी भी इंसान को उठा लो और बोलो कि ये बुल को उठा लो, और वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, अचानक से वो उठाता है, उसकी हड्डियां क्रैक कर जाएंगी। ठीक है। जिम में भी ऐसा होता है, आप अचानक से ना जोश में आ जाते हैं लोग। किसी ने डाइटिशियन ने बोला अपना वेट कम करना है, ये करो, वो एक दिन जाते हैं और हैवी हैवी वेट्स उठा लेते हैं, और उनका ना मसल स्पेजम और कुछ चीजें वो नुकसान करके चले आते हैं। सो यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस बात को आप समझिए, यही सेम चीज आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। आप ऑल आर स्टूडेंट्स एक फोकस्ड गोल के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पर अब ये जो बच्चा है, जब ये बुल उठाता है तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अब इसने 6 ओलंपिक्स एक लगातार उसने जीता है। उसने कितने सारे और अवार्ड्स जीते हैं, लाइक हिज वर्ल्ड फेमस। अब तो वो बताऊं, ये कहानी बीसी की है, ईसा पूर्व की है, और आज हम 2024 में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझिए इस बात को। तो ये कितनी बड़ी ग्रेट लर्निंग, आप इसको लेकर आ जा यहाँ से जाते हो, कितना इसको पकड़ के रखते हो। हम बहुत चीजें सीखते जाते हैं, बट उसको पकड़ के रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड गिव मी सेकंड, टाइम, मुझे अपना टाइम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सर कितना टाइम हो रहा है, थोड़ा सा सर 9 मैंने मोड। मैम 9:25। ठीक है, 5 मिनट्स में हम इसको बाइंड अप करेंगे एंड वी विल गो टू द आवर टेक्निकल पार्ट। मैंने पूरे सेशन को हाफ हाफ डिवाइड किया है। आज सेकेंड पार्ट में हम पर्सनैलिटी एनालिसिस का आज हमारा लेसन है। तो इससे आपने लर्निंग ले ली। अभी ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप को मेरा ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे आईएएस एस्पिरेंट अपने आप को कहते हो, बट यहाँ पर ये बिल्कुल एक फ्री प्रोग्राम है। बट अभी नेक्स्ट मंथ में जो हमारा फर्स्ट वीक है, उस समय हम एक अपना एकलव्य का इनर सर्कल बिल्ड कर रहे हैं। उसमें वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे जो 100% डेडिकेटेड होंगे। इवन 1% भी जो उनका डेडिकेशन मिस होता है ना, तो यू विल मिस द टारगेट। ये इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है, एंड वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये जो कंसिस्टेंट, आज मैंने एग्जांपल दिया इस बुल का, हर दिन आप हमारे साथ बैठ के पढ़ोगे। कोई एक सिंगल डे, सिर्फ एक संडे हम देंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी डे 2 आवर्स मैं खुद कैमरे में बच्चे आके हमारे साथ बैठकर पढ़ेंगे। क्योंकि अभी वो फेस्टिव सीजन चल रहा है और चलता रहेगा, कभी फेस्टिव सीजन, कभी होली दिवाली चलती रहेगी, बट हमारा फोकस, हमारा जो स्टडी टाइम है, किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज माई पॉइंट कि हम जो इनर सर्कल बनाएंगे उसमें, क्योंकि ये बच्चों का चैलेंज है कि हमसे कंसिस्टेंसी मिस हो रही है। और मैं खुद भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मेरे लिए भी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ी और मैं नहीं पढ़ पा रही। तो इसलिए हम साथ आएंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे, इस सारी डिटेल्स में अगले जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम बात करेंगे इसके ऊपर। सो गेट मेंटली प्रिपेयर्ड हु आर इंटरेस्टेड टू कमिंग इन दिस इनर सर्कल। एंड जिसको ये चैलेंज है, ये सबके लिए नहीं है, जिसको नीड है वो ही इस इनर सर्कल के लिए आप इनवाइटेड हो। अभी नेक्स्ट और एक और छोटे से एग्जांपल्स, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। एक सवाल आपके सामने मैं रखती हूँ, जिसको आंसर पता है, इसमें एक बच्चे को मैंने ये आंसर बताया है, सो आप प्लीज कीप क्वाइट रहना। सवाल है कि एक लोहे का रिंग है, क्या आप उसे पानी में उसे डालेंगे तो क्या होगा? आंसर मैं ही बताती हूँ, वो डूब जाएगा। करेक्ट। लोहे के रिंग को पानी में डालेंगे वो डूब जाएगा। क्या कोई ऐसी तरकीब है आपके पास जो हम लोहे के रिंग को डूबने से बचा लें? We can add salt to the water. अगर समंदर में क्या हम डालेंगे तो वो लोहे का रिंग नहीं डूबेगा। वो तो सॉल्टी ही है, पूरा वाटर ही सॉल्टी है। ज्यादा नमक डालने से
तो पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वो नहीं डूबेगा। ओके, तो ये एक पूरे पानी में नमक डालना क्या आसान है? एक नदी में, एक समंदर में? नहीं, और छोटा कंटेनर हो तब उसकी बात। हाँ। अभी और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आंसर जिसपे हम प्रैक्टिकली काम कर सके? We have to change the shape of the object. ओके, बट मैं तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर नहीं रही हूँ। मैंने तो बोला लोहे की रिंग है और इसको आपको डूबने से बचाना है। एक वर्ड आपने डेंसिटी का पकड़ा है, वो सही है, बट और इसको कैसे, एक रियल प्रॉब्लम है, एक मैंने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा है। समझो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और आप कैसे आंसर करोगे? Then just we have to place on something using another object, maybe to float. थोड़ा और क्लैरिफाई करके बोलिए। आपका अनम्यूट नहीं शो कर रहा है अब्दुल्ला। Then there are some disturbances, so I am meeting. रिंग को एक बलून के साथ टाई अप कर देंगे तो भी नहीं डूबेगा। ओके, दिस इज वन आंसर करेक्ट। और कुछ? मैम और वुडन कुछ? ब्लॉक उसको। यस। और चलो, कोई सो काठ का टुकड़ा रख देते हैं तो लोहे के नीचे। कांच का टुकड़ा? काठ काठ काट, वुडन। अभी ममता ने बोला ना, वुडन काट, वुडन की चीज साथ अटैच कर देते हैं तो वो नहीं डूबता है। करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करा आपने और करेक्ट आंसर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या, एक और बहुत बड़ी लर्निंग है और जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिर्फ कहानी बनाने के लिए तो यहाँ पर आप यूट्यूब में चले जा सकते हो। यहाँ पर आपने देखा एक हैवी डेंसिटी का जो सामान है उसको भी हमें डूबने से बचाना है, तो क्या किया आपने, उसे लाइटर डेंसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। यही किया ना, बलून के साथ कनेक्ट किया। जब हम तैरते हैं तो भी हमारे पास वो रिंग वाला बलून इस्तेमाल करते हैं जब हम ना डूबे। या आपने उसके लिए वुडन प्लैंक यूज कर लिया, वो भी लाइटर डेंसिटी है। तो हमने जब हायर डेंसिटी को लाइटर के साथ अटैच कर दिया तो उसकी वजह से वो डूब नहीं पाया। यही सेम काम हम अपने इस इनर सर्कल में करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चे अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स विच इज ड्रैगिंग यू डाउन, वो आपको नीचे खींच रहा है। बट जब आप इस कम्युनिटी में आओगे तो हमारी जो डेंसिटी हम मेंटेन करेंगे, जो ऑरा एंड वाइब एंड एनर्जी अपने प्लेटफॉर्म का मेंटेन करेंगे, ये आपको डूबने नहीं देगा। दैट इज लाइक आवर कमिटमेंट टू दिस ग्रुप। और मैंने पहले ही बताया, ये कमिटेड लोगों का ग्रुप होगा और हर एक बच्चे को एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर प्रोवाइड किया जाएगा। एज पर हम देखेंगे किसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से किसके लिए बेस्ट फिट किया है, किसका कैसा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सके। ठीक है, तो डू यू थिंक ये जो हमने अभी डेंसिटी की बात की, अभी ये दो चीजों को हमने मिलाया, एक लोहे को एक वुडन को, और काम हमारा बन गया। ऐसे ही हम कुछ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स देंगे, कैसे काम करेगा उस सारा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। बट अभी हम सिर्फ कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं, इसकी सारी बातें हम अगले जो सेशन है, अगला जो 27 को होगा, उसमें बात करेंगे। तो आज का हमारा जो हाफ ऑफ द सेशन यही तक था। अब लेट्स कम टू द, आई थिंक क्या क्या लर्निंग, लेट मी रिवाइज। हमने दो बातें की, एक बुल का एग्जांपल लिया, जो बच्चा और बुल से, वहां हमने सीखी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम वो बड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट को हमने गेन किया। उठाना, जाना उठाना, ये अपने आप एक बड़ा चैलेंज। आपको भी तो वही करना है एवरी डे, इतने आवर सेट करने और पढ़ाई करनी। बट यही तो नहीं हो पा रहा है, यही तो नहीं हो पा रहा है बच्चों से, और यही आपसे हमें करवानी है। कैसे करवानी है? कोई भी टेक्निक, कोई भी टूल कहीं से हम ढूंढ के लाकर, कोई भी दिमाग लगाना पड़े, आपको करवाना ही है हमें। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, आपके पास अभी से पक्का 6 महीने हैं, ये अगर आपने सॉलिड लग के नहीं कराना तो चांसेस है कि आप फिर से एक साल खो दोगे, एक अटेम्प्ट खो दोगे। एंड वाई टू वेस्ट, एक टाइम मिला है। अभी मेरे पास दूसरे अपॉर्चुनिटीज ना आ रहे थे, लेट मी ज्वाइन एज ए काउंसलर,
पता नहीं, आई डिडंट फील कि मैं अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और करूं। मुझे लग रहा है ये बच्चे, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं है इंडिया में जो इस तरह से आपको एवरी डे 2 घंटे टीचर आपके साथ बैठ कर आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप हर समय 11 से 12 बैठ ही रहे हो। अगर आपने नहीं बैठा, यू विल बी आउट फ्रॉम दैट ग्रुप। और अगर कोई ऐसा रीजन है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, आज नहीं बैठ पा रहा हूँ, यू हैव टू इन्फॉर्म विद द सॉलिड रीजन। ठीक है, ये इतनी अरेंजमेंट की जा रही है और मुझे पता है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ये बैठना कितना मुश्किल है। जब तक हम लगेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, होगा नहीं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मुझे कितने चैलेंज आते हैं, सब कुछ ठीक है समय, बट कभी नोटिफिकेशन, कभी स्क्रॉलिंग, कभी कुछ, कभी अच्छे रीजन से ही। वैसा नहीं कि वो मैं समय को बर्बाद कर रही हूँ, कुछ अच्छा ही रीजन से अपना फोन यूज कर रही हूँ, बट जो मेरा टारगेट है वो नहीं अकम्प्लिश हो रहा है। यू गॉट द पॉइंट। आप भी कुछ अच्छी चीजें देख रहे हो, यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस देख रहे होगे, बट स्टिल इट इज किलिंग योर टाइम, जो कि आपका मिशन, जो आपका गोल है, उससे हटके है। तो लेट इट बी लर्निंग फॉर टुडे। आप इस लर्निंग को आप कैसे एनालाइज करके अपने लिए लेते हो, आई एम लिविंग अप टू यू। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द पर्सनैलिटी एनालिसिस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर रिपोर्ट एनालिसिस की थी, एंड आई टोल्ड यू अबाउट 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। डू यू रिमेम्बर? अब इसमें कुछ चेहरे मुझे नए दिख रहे हैं। कितने चेहरे नए हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो कैमरे में, मैं उनको ही कंसीडर करती हूँ, जो कैमरे में, जो कैमरे में नहीं दिखते मैं उनको कंसीडर नहीं करती हूँ। मुझे वो, आप अपने आप को ज्वाइन करके समझ रहे हो, बट फॉर मी लाइक ना, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दैट इज द फैक्ट। इकरा एंड कौन, हाँ, चिंटू और अब्दुल्ला, ये न्यू फेसेस मुझे दिख रहे हैं। सौम्या, यस। मैम मैं नई हूँ। हाँ मैम हाँ, थर्टी तासी, एट सॉरी। मैम। तो 5 बच्चे मुझे कैमरे में न्यू दिख रहे हैं, और आई रियली वेलकम यू। आज आपके लिए फर्स्ट सेशन है, बट आपने पीछे की आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कितने टाइप की डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है, बट आई कांट रिवाइज एवरीथिंग टुडे बिकॉज आई हैव टू फिनिश अदर थिंग। आज हम डिस्कस करके, कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट बता सकता है कि वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? अगर आपके व्हाट्सएप में या कहीं है, कहीं से भी देखकर बता दो। कोई है? नहीं तो मुझे ही बताना पड़ेगा। एक जस्ट शॉर्ट रिवाइज करना चाह रही थी, दैट्स ऑल। किसी के पास है? सब भूल गए। ये एग्जाम का चीज कैसे याद रखते हैं पता नहीं। किसी के पास, आपने सर उसको व्हाट्सएप में शेयर किया था ना उसको? व्हाट्सएप में शेयर्ड है वो वाला। हाँ, आप वहां से निकालो और जस्ट फटाफट ना वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, पुष्पलता, कैन यू डू दैट? आप एकलव्य के ग्रुप में जाओ, वहां से वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सिर्फ रीड करो। Yes, ma'am. I'm just checking. गुड, हाँ। Ma'am, I was not added in Eklavya group that time. मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ फिर से। मैम एवरीवन मैं प्लीज करूँ? चेक। यस, एवरीवन प्लीज चेक। Yes, ma'am. Got it. So, ma'am, it is first is logical, mathematical. करेक्ट। Second is musical. Third is a naturalist. Fourth करेक्ट। is verbal linguistic. Fifth करेक्ट। is interpersonal. And sixth is bodily kinesthetic. Seventh is spatial visual. Eighth ओके। is intrapersonal. ओके। Yes, ma'am. सर इसको और मुझे रिवाइज करना है, बताने की जरूरत है, या शुड आई गो अहेड? मैम यू कैन गो अहेड, दे विल बी सीइंग द रिकॉर्डिंग्स प्रीवियस वन। ओके, ग्रेट। तो ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, और उसको हमने डिस्क्राइब किया था, और क्या इसका रीजन है, मैं क्यों बता रही हूँ, ये भी तो समझना है। वरना सोच रही हो ये क्यों साइकोलॉजी की क्लास यहाँ पे आप ले रहे हो? मैम, वी आर नॉट द साइकोलॉजिस्ट, और हमें साइकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अगले क्लास में मैं
आईएएस ऑफिसर बनने की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए उस पे हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके जो ट्रेट्स हैं। ठीक है, एक डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज फिक्स होती है। ठीक है, तो वो बहुत ही लाइक सबको पता है एक आर्मी ऑफिसर बनना है तो। बट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वैसा ओपन करके वैसा नहीं बताया है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक आईएएस ऑफिसर बनने की बेसिक क्वालिटी जो मस्ट है, जिसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, वो आपको मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगी। बट उसको समझने के लिए आपको पहले ये दोनों टेस्ट समझना पड़ेगा, ये दोनों जो एनालिसिस है वो समझना पड़ेगा, वरना आप टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। अगर मैं बताऊं कि एक आईएएस ऑफिसर को इंटरपर्सनल होना चाहिए, इंट्रापर्सनल होना चाहिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक होना चाहिए, आप क्या समझोगे जब आपको ये पता ही नहीं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है? तब मुझे वापस उस टर्म्स को समझाना पड़ेगा। गॉट व्हाई आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप? तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से आपको चीज समझा रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं एक बड़े पिक्चर को माइंड में रख के काम कर रही हूँ। आज आज का जो हमारा है वो है पर्सनालिटी एनालिसिस। सर कैन यू ब्रिंग द पीडीएफ, वो पर्टिकुलर पेज जहां पर। Yes, ma'am. Sharing. तो इसमें लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टेस्ट व्हाट, ये एक रेजिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, उसको भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ। Ma'am, is it visible? यस इट इज, जितना मुझे चाहिए उतना इनफ है। मुझे वो जो सिक्स सिक्स टाइप्स है ना वो क्लियरली दिखनी चाहिए, करेक्ट, दिस मच। आई थिंक आपको सबको दिख रहा है ना? हाथ उठा के Yes, एक बार ma'am. दिखा देना कि यस इट इज कंप्लीटली विजिबल। Yes, ma'am, visible. चलो, Yes, ma'am. सो एज आई टोल्ड लास्ट टाइम, उसी तरह से यहाँ पर जो पर्सनालिटी है, सी पर्सनालिटी को हम बहुत तरीके से एनालाइज करते हैं। आप अलग अलग जगहों पे बोलोगे कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऐसे भी डिफाइन होता है, ऐसे भी बताया जाता है, बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी को डिजाइन किया गया है जो आपको ज्यादा फिट बैठेगा। ओके, सो एवरी इंडिविजुअल हैज 6 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, मार्क दिस वन कि हर एक इंसान के पास 6 टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती ही है। बट द थिंग इज कि एवरी इंडिविजुअल में एक दो या समटाइम्स 3 ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, और उसी के डोमिनेंस के हिसाब से हमें अपने करियर को डिसाइड करना होता है। ये नॉलेज आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी दे सकते हो जो क्लास 9 अबव है, जिन्हें स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, उनको भी ये नॉलेज आपको काफी हेल्प करेगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब क्लास 9 में 10 में 11 में होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, या फिर हम 12 में मेडिकल पढ़ाई करें, लॉ की पढ़ाई करें। तो वैसे बच्चों को भी आप हेल्प कर सकते हैं इस नॉलेज के थ्रू, एंड ये आपकी जीके को भी इनहेंस कर रहा है। तो अभी इस टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है इसके माध्यम से ये बच्चे ये एनालिसिस होती है कि आपके अंदर कौन कौन सा पर्सनालिटी डोमिनेंट है। अब जब मैं अगले क्लास में बताऊंगी कि आईएएस बनने के लिए इस पर्टिकुलर 6 में से कौन कौन सा हाई होना मैंडेटरी है, दैट इज नॉट ऑप्शनल, दैट मस्ट बी इन यू इफ यू आर कंसिडरिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर इन फ्यूचर। ठीक है, अगर मान लो कि कुछ मार्क्स उसमें आपको कुछ स्कोर्स कम आ रहे हैं लेकिन वो है मैंडेटरी, तो वैसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, हमको उस ट्रेड पर काम करना होगा, हमें उस स्कोर को थोड़ा बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी। ठीक है, उसको हम पूरी तो पर्सनैलिटी बदल नहीं सकते, बट हम जब मेहनत करते हैं तो हम 6 to 7, 7.5 आ जाता है, बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इनर सर्कल होगा उसके लिए ये रिपोर्ट भी मस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे कि ये कर लो वो कर लो, आपकी ये पर्सनालिटी है, सो एकदम साइंटिफिकली काम करना है।
ठीक है, टू द पॉइंट काम करना, आप में ये गैप है, ये मिसिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको ऐसे एग्जैक्टली काम करना है। तो ये रिपोर्ट आपको दी जाएगी हर इंडिविजुअल को, और हर एक बच्चे के रिपोर्ट का स्कोर आएगा मेरे पास रहेगा, उसको मैं एनालाइज करूंगी, और हर एक बच्चे के साथ 1 to 1 बैठकर मैं उसके रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शंस को बताऊंगी, और उसको करना क्या है इन फ्यूचर, कहाँ कहाँ पे उसको वर्क करना है अपने पर्सनैलिटी पे, अपने इंटेलिजेंस पे, उस पे हम डिटेल बातचीत करेंगे। ठीक है, अब लेट मी स्टार्ट विथ फ्रॉम 1 to 6, मैं आपको टोटल डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट इज, क्या है पहला वाला पॉइंट, कोई एक ओपन अनम्यूट करके बताइए। Realistic. करेक्ट, रियलिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है। अच्छा, इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू इन 50% हिंदी 50% इंग्लिश, इज इट ओके फॉर एवरीबडी हियर? Yes, किसी को Yes, ma'am. चैलेंज है? यस मैम। ओके, अगर किसी को चैलेंज है तो प्लीज प्रभात सर को आप मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू, देन आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश, otherwise let me use both the languages. Realistic means those personality जिसको those kind of careers जिसमें ना फील्ड वर्क ज्यादा होता है, या फिर टूल एंड टेक्निक के साथ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़े आपको ना कीवर्ड्स भी दिख रहे होंगे, अगर दिखाई दे रहा है तो, फिजिकल एंड आउटडोर एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन टूल ओरिएंटेड नॉलेज। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, यहाँ कोई हैं हो भी सकते हैं। मैं Yes, हूँ। ma'am. मैं हूँ। Yes, ma'am. I'm also. ओके ग्रेट। अब देखो, अगर आपकी पर्सनैलिटी रियलिस्टिक है, तब तो आप एक इंजीनियर बनकर ही खुश होते, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी शायद रियलिस्टिक नहीं है, दैट्स व्हाई यू वांट टू स्विच योर करियर। इतना तो मैं जरूर बता सकती हूँ, नहीं तो आप इंजॉय करते हैं अपने प्रोफेशन को, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। इन जो लोग होते हैं, ये जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं, इनको टूल टेक, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको मशीन के साथ काम करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन क्या एक इंसान जिसको टूल एंड टेक्निक से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, वो उस करियर में लंबा समय तक एंजॉय करेगा? उस पर लगता है, यू टोल्ड दैट यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर। No, ma'am. I learned automobiles, but I lose interest. Yes, I can, since I have interacted few times with you, so I understood your personality, and even आज आप बता रहे हो ये बात, बट मैं पहले से बता सकती थी कि आपकी पर्सनैलिटी इसके साथ मैच नहीं करी है। अगर यही बात आपको पहले बता देते तो शायद आप वो कोर्स ही नहीं करे होते जो आप अभी करे हो। ये आपका एक वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं ये नहीं बोलती कि पूरा नॉलेज वेस्ट होता है, बट कुछ और कर रहे होते और बेटर कर रहे होते। ठीक है, अभी प्रभास सर की भी जो पर्सनालिटी है, जितना मैं उनको समझती हूँ, he is also not resonating with this personality रियलिस्टिक के साथ, नहीं तो शायद वो आज आपके साथ नहीं होते, वो किसी मशीन के साथ होते। Am I correct, प्रभास सर? यस मैम, मैंने क्यों बीटेक किया मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट। हमारी इंडिया में हमारी एजुकेशन सिस्टम है जिसके तहत बच्चे ना, लाइक मुझे तो लगता है ट्रैप हो जाता है। आई एम ऑल्सो, अभी मैं अपनी स्टोरी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मे बी कमिंग टाइम में फिर से बताऊंगी, अदरवाइज आज का सेशन मिस हो जाएगा। लेट्स मूव। इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर दोज पीपल जिनका लॉजिकल बहुत स्ट्रांग होता है। इससे आपको मैं रिलेट करती हूँ प्रीवियस रिपोर्ट में। डू यू रिमेम्बर विच वन वॉज द सिमिलर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस? द फर्स्ट वन, लॉज क्या था? टेल मी। मैथमेटिकल लॉजिकल। Mathematical, logical. Yes, ma'am. उसमें हाँ, अगर सिर्फ किसी किसी बच्चे को ना एक रिपोर्ट से काम बन जाता है, किसी किसी के बच्चे का एक रिपोर्ट एनफ नहीं होता है उसके पूरी करियर का एनालिसिस करने के लिए, सो वी गो फॉर दिस सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट। तो मोस्टली वी प्रीफर टू डू गो फॉर बोथ द टेस्ट, ताकि ना 100% क्लैरिटी आए।
नहीं तो कभी कभी ना वेग रिजल्ट की चांसेस होते हैं, तो व्हाई टू टेक द रिस्क, इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन है ना, करियर या कुछ भी, व्हाई टू टेक छोटी सी चीज को मिस करके। तो जब दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे को बिल्कुल क्लियर आइडिया होता है। वहां पर लॉजिकल भी हाई आएगा, यहाँ इन्वेस्टिगेटिव भी हाई आएगा, मतलब कि वो बंदा पूरा लॉजिकल है, उसको अपना करियर उसी में बनाना है जहां पर उसका लॉजिकल माइंडसेट इस्तेमाल हो। गॉट माई पॉइंट? ओके। जिसमें साइंटिस्ट आते हैं और बहुत सारे प्रोफेशन, जितने भी मैथ की जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो आते हैं, एंड मेनी थिंग्स। अभी लॉयर बनने के लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एनफ नहीं है, और भी चीजें हैं, बट लॉयर बनने के लिए भी इन्वेस्टिगेटिव मस्ट है। ठीक है, इट इज अ एंड मेनी थिंग। अभी आईएएस का तो मैं ला ही नहीं रही हूँ पिक्चर में, क्योंकि आईएएस को मुझे पूरा डिटेल एनालिसिस करना है, तो वो मैं अगले, अभी तो मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी को समझा रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आईएएस का भी इसमें ला नहीं रही हूँ कि आईएएस के लिए ये चाहिए कि वो चाहिए। अभी आपने नीचे आपने पढ़ा होगा, रिसर्च, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, लर्निंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये लोग बहुत हाईली क्यूरियस लोग होते हैं, कि मैंने पहले भी बताया था, एक एप्पल गिरा नहीं कि पूरा उन्होंने फिजिक्स को रच दिया। गॉड, हमारे सामने कितनी चीजें गिरते रहती है, कितना बार हम, क्या, मुझे यही सोचती हूँ कि क्या ये एप्पल न्यूटन के समय में पहली बार गिरा था? ये धरती कब से है, कब से एप्पल का ट्री होगा, कितनी चीजें गिरी, किसी के नोटिस में नहीं आया। बट एप्पल ने के सामने ही जब एप्पल गिरा तो फिजिक्स के इतने सारे लॉज बन गए, पूरा फिजिक्स एग्जिस्ट करने लग गया एक डिफरेंट लेवल पे। तो अगर हमने न्यूटन का अगर ये रिपोर्ट तैयार की, तो शायद वो 10 आउट ऑफ 10 ये स्कोर है, शायद 9.5 या फिर 10 के काफी करीब होता। आर्टिस्टिक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक में वो लोग आते हैं जो जितने भी पोएट हैं, जितने भी फ्री थिंकर्स हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है एस्थेटिक सेंस, एक्सप्रेशन, फीलिंग, पैशन, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। ये लोग क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, म्यूजिक इंडस्ट्री के हों, किसी भी इंडस्ट्री में हो, बट इनके अंदर क्रिएटिविटी काफी कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है, अभी इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पर इसका इस्तेमाल, जितने भी पोएट हैं, राइटर्स हैं, ये सारे जो आपको फिल्म के जो राइटर्स होते हैं, स्टोरी राइटर्स होते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इवन म्यूजिशियन, जो नया म्यूजिक कंपोज करते हैं, इवन जो कोरियोग्राफर्स होते हैं, न्यू न्यू कोरियोग्राफी को लाइक डांस के न्यू न्यू स्टेप्स डिजाइन करते हैं, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर मैंने बोला कि अगर कोई कोरियोग्राफर है तो सिर्फ एक आर्टिस्टिक होगा, दैट इज नॉट एनफ, इट वर्क्स इन ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक प्रोफेशन के लिए दो दो चाहिए होता है, कभी तीन चाहिए होता है। ठीक है, इट वर्क्स इन ए कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल को अगर मैं पिछला वाला रिपोर्ट से एनालाइज रिलेट करूं तो कौन सा होगा, कोई बता सकता है? सोशल लोग जो होते हैं वो लोगों से कनेक्ट करने में वेरी कंफर्टेबल, दे आर लाइक इंजॉइंग कनेक्टिंग विथ पीपल। बताइए नेक्स्ट प्रीवियस। Intrapersonal. Interpersonal. इंटरपर्सनल, वेरी करेक्ट, दैट इज Interpersonal. interpersonal is somehow completely similar to the interpersonal। ठीक है, एंड दोज प्रोफेशन, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग हैं, दे मस्ट हैव दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सनालिटी, मस्ट, नहीं तो वो मत जाओ एमबीए मत ही करो, नहीं तो जाकर फिर आप कुछ और करोगे। ठीक है, एमबीए में जाने के लिए सोशल इज अ मस्ट, मेनी मोर थिंग्स विल बी देयर बट दैट इज विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग में सारे एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, देयर हाईली रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, सब लोग रिस्क लेने में सबको मजा आता है? आई डोंट थिंक सो। कुछ लोगों को मजा आता है, वांटेडली रिस्क लेते हैं, और कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। कुछ लोग ना, एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया, पोटेंशियल बहुत भरा है, लेकिन एक जॉब मिल गया, दे आर हैप्पी। ठीक है,
दाल भात रोटी खाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए चीजें मिल रही है, आई एम हैप्पी, ठीक है। लेकिन जो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट के लोग हो गए, उनको आईएएस ऑफिसर भी बना दोगे ना, और अगर या कुछ भी किसी भी हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन अगर उनकी एंटरप्राइजिंग बहुत ज्यादा हाई होगी ना, दे विल लिव दैट जॉब, और वो कुछ और करेंगे जो एंटरप्राइजिंग से सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगी। बहुत लोग जॉब आते हैं क्योंकि पेरेंट्स इतना प्रेशर होता है, जॉब करो पैसे कमाओ, वो पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ जॉब पकड़ लेते हैं। अभी आप देखो, धोनी का एग्जांपल देती हूँ। धोनी ने जॉब किया, सबने धोनी मूवी देखी, मैं भी धोनी की मूवी से ही बता रही हूँ। उसने पेरेंट्स के प्रेशर में आके जॉब किया, यस किया, लेकिन उसके अंदर की जो आवाज थी, अंदर का जो डिमांड था, कुछ और था, और वो वहां अपने आप को खींच लाने में सक्षम हुआ, वो रिस्क लेने में सक्षम हुआ, और अपनी उस एबिलिटी को बाहर निकाल पाया, ठीक है। मैं क्रिकेटर्स को पूरी तरह से एंटरप्राइजिंग में नहीं रखती हूँ, उसके और ट्रेड्स है, बट जस्ट टू समझने के लिए कि अगर आप एंटरप्राइजिंग हो तो जहां हो आप वहां पे रुकोगे नहीं, जब तक कि आपको वो फील्ड ना मिले जहां आपको नए जितने भी लीडर्स हैं, आप अपने प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स आप समझते हो सब लोग, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, सो इसमें आपके सारे लीडर्स, मैनेजर्स, रिस्क टेकर्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, आप अब किसी भी कंपनी में आप देखते हो कि ऐसे कुछ लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, कौन इतना बड़ा सा प्रोजेक्ट लेगा, और कुछ लोग ना लाइक कुछ भी करके दे आर रेडी टू टेक द बिगर प्रोजेक्ट्स, और उसको सक्सेसफुली निभाते भी है, प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश भी करते हैं। तो दोज पीपल विल बी इन दिस कैटेगरी। और ये लोग गवर्नमेंट जॉब में बहुत एंजॉय नहीं करते, ये सारे जो बिजनेस लीडर्स, एमएनसी जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती है, दे प्रीफर टू गो इन दैट, क्योंकि यहाँ इनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि यू हैव फिक्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थोड़ा लिमिट हो जाती है, लेकिन आप कितना भी काम करो आप थोड़ा ही आगे बढ़ पाते हो। सो दैट्स वाई बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं अगर उनकी पर्सनैलिटी एंटरप्राइज से रेजोनेट करती है। नेक्स्ट कम, दैट इज कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल को आप थोड़ा अच्छे से समझना, अगले क्लास में मैं इसको ज्यादा अच्छे से थोड़ा समझाऊंगी और इसका इस्तेमाल करूंगी। कन्वेंशनल में वो लोग आते हैं जिनको ऐसा जॉब चाहिए जिनको स्ट्रक्चर्ड है, एवरीथिंग सो फिक्स्ड प्लान। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक में अगर कोई जॉब करता है तो एकदम परफेक्टली डिजाइन है, ये पोस्ट ये काम। इवन आर्मी, अगर एक डिफेंस ऑफिसर बनना है तो वो भी उसके अंदर एक कन्वेंशनल की पर्सनालिटी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि दे हैव टू वर्क ऑल्सो इन हियरार्की। वो अपनी मर्जी से कितने भी आइडियाज आ जाए उनके, वो उस पर काम नहीं कर सकते, उनको काम उसी पर करना है जो उनको ऑलरेडी अलॉटेड है, उनके जो सिस्टम ने उनको दिया है। इसलिए बहुत लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, किसी वजह से आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि दे डोंट गेट द एक्सपोजर दे आर सीकिंग। यहाँ वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाते, उनको एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम दिया है और उनको उसी के साथ 100% काम करना होता है। तो जब ऐसी बाउंडेशन के साथ करना है तो दे रियली स्ट्रगल। और आर्मी ऐसी चीज है कि आप छोड़ भी नहीं सकते। तो अगर आर्मी कभी किसी ने ज्वाइन करने का सोचा है तो जरा जरा सोच समझ कर करना, ठीक है। तो कन्वेंशनल में आपको एवरीथिंग विल बी सेट होना चाहिए, आपका काम करने का टाइम, आपका काम करने का स्टाइल, आपका काम करने की जो जगह, एंड एवरीथिंग शुड बी लाइक वेल प्लान इन एडवांस। लेकिन एंटरप्राइजिंग के साथ ऐसा नहीं है, वो कुछ भी नया अडॉप्ट कर सकते हैं और वो ढूंढते हैं कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए। एलन मस्क को आप देखो, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट वो लाता रहता है,
लोग, ठीक है? क्या उसके लिए जीने खाने और खुश रहने के एनफ चीजें नहीं है? ही शुड बी हैप्पी अभी इस मोमेंट में, बट एवरी टाइम उसके माइंड में न्यू आइडियाज आते रहते हैं, ठीक है? और वो उस पे काम करते रहते हैं, दुनिया उसको देख रही है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी। तो अभी मैंने आपको 6 पर्सनालिटी को एक ब्रीफली एनालिसिस दिया है। अगर यहाँ पर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं अभी, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ अगले सेशन में, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। कुछ यहाँ पूछना है? Ma'am, I have a question. यस, गो अहेड डियर। How can we find out our personality? ओके, तो ये अभी मैं अगले सेशन में इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। एक्चुअली आप, चूंकि आपका फर्स्ट सेशन है, जो पुराने बच्चे उन्हें पता है, दिस इज अ रिपोर्ट एनालिसिस। मैंने एक अभी मैं इतना कम समय में कैसे बताऊं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन का सेट भेजा जाता है थ्रू अ लिंक। उस जब लिंक को आप खोलते हो तो 80 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आप उस 80 क्वेश्चंस को फिल करके वापस मेरे पास भेजते हो। उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार होने के लिए वो कंपनी के पास जाती है। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर दे डेवलप दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट। ये किसी बच्चे का रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने खोल के रखी हूँ, उसके स्कोर यहाँ दिख रहे हैं। इसको मैंने जैसे सैंपल रिपोर्ट अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये किसी बच्चे का, दिव्यांशु उस बच्चे का नाम है, उसका रिपोर्ट मेरे सामने जो आया मैंने खोल दिया। सो उसका ये रिपोर्ट है वो। तो इसी तरह अगर आप भी अपना टेस्ट, मैं तो जो मैंने बताया इनर सर्कल में जो आएगा उसका ये टेस्ट मैंडेटरी होगा, क्योंकि हमें पिन पॉइंटेडली काम करना है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि अपना पर्सनालिटी एनालाइज करो, तो शायद आप कर पाओगे, मैं नहीं कहती कि नहीं कर पाओगे, बट कितनी एक्यूरेसी से करोगे इस पे मुझे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि हमें ना बहुत बारीकी से काम करना है, क्योंकि हमें अगर पता नहीं कि मेरा वीक कहाँ है, और मेरी अभी मैं अगले क्लास में बताऊंगी कि आपकी इस पर्सनालिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईएएस बनने के लिए, अभी वो हाई होना ही चाहिए। अगर वो हाई नहीं है तो मुझे कैसे मालूम चलेगा, या आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा हाई नहीं है? मे बी ये एवरेज होगा और आपको लगता है कि नहीं आई एम गुड एट, ठीक है? ये एक्यूरेसी से हमें तभी मालूम चलेगा जब ऐसे रिपोर्ट्स हम एनालाइज करते हैं। अभी ये पहले के लोगों को नहीं मालूम था, ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी है जहां सब कुछ एआई से होता है, ठीक है? तो आपको ये बेनिफिट है। प्रीवियस जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही करते रहते थे, रॉन्ग प्रोफेशन में चले जाते थे। इवन हमारे जो एक जो दिव्य कृति विकास सर हैं, ही हिमसेल्फ, लाइक उन्होंने आईएएस क्रैक किया, he entered into the politics, वहां पर he didn't enjoy it। उन्हें लगा, he told कि मेरी पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स में आने की नहीं है। he left that, he entered once again into the teaching, he enjoyed it and he continued this, ठीक है? तो ये एक जर्नी है। तो उन्होंने ये जर्नी तय की और उनके ऊपर भी प्रेशर था कि आपको आईएएस बनना है। ही हिमसेल्फ टोल्ड, मैं जो उनसे सुनी हूँ वही बातें बता रही हूँ, कि आईएएस बनने का एक प्रेशर था, तो वो बन गए। बट फाइनली वो कर रहे हैं जो उनका दिल चाहता था, ठीक है? तो हर हर इंसान का अपना सेट ऑफ पर्सनालिटी। अब उसमें मालूम चलेगा कि इसमें कितने लोग हैं जो आईएएस बनने के बाद एंजॉय करेंगे, वो भी क्लियर होगा, ठीक है? वो भी आपको मालूम चलेगा कि आईएएस बन भी गए तो भी बोलोगे कहाँ फंस गए, ठीक है? बट वो अभी बात की कहानी है, वो तो जब हम 1 to 1 बात करेंगे तो ही समझ में आएगा। आप जैसे उन्होंने किया कि आपको आईएएस बनना है तो आप बन के कुछ और स्विच करो, कम से कम एक नेम फेम, एक रुतबा हासिल कर लो, यूज दिस इन अनदर प्रोफेशन अगर आपको चाहिए तो। बहुत लोग आईएएस बनने के बाद भी छोड़ते हैं, आईआईटी के टॉपर्स भी आईआईटी करके छोड़ते हैं और तब वो सुपर 30 बनता है, ठीक है? तो वो लोग अपने पोटेंशियल को, अपने पैशन को इतनी क्लैरिटी से समझते हैं कि दुनिया, क्या लगता है कि जब उन्होंने अपने आईएएस की जॉब को छोड़ा होगा, आईआईटी के इस कोर्स को छोड़ा होगा, तो लोगों ने कितना सपोर्ट किया होगा
उनके घर वालों ने क्या क्या नहीं सुनाया होगा उन्हें, लेकिन स्टिल दे वर रेडी टू टेक दिस स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि उनका एंटरप्राइज इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि समझते हैं कि लाइफ तो एक ही मिली है, जीना तो इसी में है, तो वो करके जिए जिसमें दिल मांगे मोर, दिल कुछ और चाहता है उसको करके। और उन्होंने वो किया जो लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। वो आईआईटी करके एक आईआईटी निकलता, आज वो लाइक नंबर्स ऑफ आईआईटी, नंबर्स ऑफ आईएएस ऑफिस को तैयार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी पर्सनालिटी को पिन पॉइंटेडली हमें समझना है और उस पर बहुत जबरदस्त काम करना है। अगर हमने ये कर लिया तो लाइक गोल को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी चीजें जो सेकंड दूसरा पार्ट है कि हमारी चैलेंजेस है, कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, कैसे फोकस को लाना है, कैसे हमें अपने नोट्स को तैयार करना है, कैसे हमें चीजों को अपने मेमोरी में रखना है, एग्जाम के लास्ट समय में कैसे अपने पूरे नोट्स को रिवाइज करना है, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे बच्चे की तरह सिखाऊंगी। ठीक है, आर यू हैप्पी? Yes, ma'am. चलो, यस मैम। तो आज का सेशन शुरू के हमने 4-5 मिनट 10 मिनट बर्बाद कर दिए, या हो गया जो भी टेक्निकल ग्लिचेस थे। तो आई एम डन। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कोई फीडबैक देना है, कुछ चीजें चेंज चाहिए, चाहे मैं ज्यादा स्पीड बोल रही हूँ या कुछ उसमें आपको करेक्शन चाहिए, बिफोर यू लेट स्टूडेंट्स मी नो। कुछ बोले, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो आप चीज प्रोवाइड बिल्कुल। कर रहे हैं, आई विश कि मुझे ये 10 साल पहले मिला होता तो अलग ही चीज हो कि कर रहा होता मैं। बिकॉज आई नो वन वाज देयर। मतलब स्टूडेंट्स आर फॉर्चुनेट इनफ कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो चीज कर पाते हैं। और मैं प्रीवियस बैचेस, इतने 5 बैचेस कंप्लीट होने वाले हैं मेरे। तो प्रीवियस बैचेस का मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप मैम ने पर्सनालिटी के बारे में बताया, तो स्टूडेंट्स सुन ले ध्यान से कि उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे, आई मीन मतलब जैसा मैम ने बताया कि उनकी पर्सनालिटी इस चीज को मैच नहीं कर रही थी, मतलब इन ए सेंस कि यूपीएससी ही करना है और उनकी फैमिली प्रेशर इतना था, ऐसा ऐसा। अभी उनका ये हालत हो गया है, दे हैव लिटरली गॉन मैड। मतलब उनके रूममेट्स का एग्जाम निकल गया है, एंड दैट पर्सन, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ही मुझे डर है कि वो जीवन में और कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एक होता है ना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने वो अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित मूवी जो पर्सनालिटी स्विच होते रहता है, कभी अच्छा बन जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा। लिटरली दैट डिसिडेंट कैंडिडेट हैज बिकम पर्सनैलिटी लाइक दैट। होती है। हाँ, वही स्प्लिट पर्सनालिटी, सॉरी। तो वैसा ही उसका हो गया। अब सोचो, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया, उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब सोसाइटल प्रेशर में ऐसे 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 करके लग गए उसमें। नाउ ही इज नॉट इन अ मतलब कंडीशन टू गेट मैरिड, ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू टेक हिज करियर फॉरवर्ड, ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू टॉक टू पीपल, ही इज नॉट कंफर्टेबल विथ एनी मैन। हर चीज से उसे फोबिया है। अब सोचो, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट आइडेंटिफाइंग कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, पता होना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनालिटी को इवेलुएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप लोग फॉर्चुनेट हो, और आने वाले बैचेस फॉर्चुनेट हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं उनको। वरना हम लोग के टाइम में जिस जनरेशन, मिलेनियल जो जनरेशन है हम लोग को, तो हम लोग 90s के हैं हम लोग बॉर्न, तो हम लोग को तो ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि क्या है नहीं है। पता होता तो एटलीस्ट हमारा तो समय बचा रहता। इनफैक्ट आप लोग का भी ऑलरेडी समय गुजर चुका होगा, वेस्ट हुआ चुका हो। बट कोशिश करिए कि आपका अभी का जो प्रेजेंट का समय है, और साथ ही साथ आपके जो जूनियर्स हैं, आने वाली जो मतलब रिलेटिव हैं, आपके कजन्स वगैरह हैं, उनको, उन तक आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड यू कैन इनिशिएट कि हाँ ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज इंडिया में मुझे तो फिलहाल अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं नजर आया, पूरा सब जगह देखा हूँ। करियर डिसीजन लेना होता है, अंकल ने बोला है ले लो, पापा के दोस्त ने बोला था ले लो, ये करना है वो कर लो, फलाना का बेटा, मतलब रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बन गया, तो मुझे मुझे भी आईएएस भी बनना है। मतलब इस तरह से ट्रैप में स्टूडेंट्स ना, मतलब माइंड तरह करके होता है। और एक्चुअली जो जेन्युइन चीज होती है पर्सनालिटी को करने की, और जो चीज कर सकते हैं, दे गेट वेस्टेड। तो बस मुझे ये बोलना था, एंड रेस्ट अदर स्टूडेंट्स कैन से इफ दे वांट। Yes, we can have 5 minutes of the discussion time. Then we will close it because time run like थोड़ा आगे भाग रहा है।
यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर व्यू पॉइंट्स। क्या लर्निंग हुई, या कुछ आपको और चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला है, उस पे हम काम करेंगे। और आज से क्या सीखा, कुछ भी आप अपनी बातों को रख सकते हो। एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जब भी मौका मिले बोलने के लिए, टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ये आप प्रैक्टिस में डालो, क्योंकि आपको आने वाले समय में इंटरव्यू फेस करना है। एंड दिस इज लाइक काइंड ऑफ स्मॉल ट्रेनिंग चल रहा है ये। वो बुल की तरह हम थोड़ी थोड़ी आपको वजन दे रहे हैं। अब एक ही बार डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करके आपको छोटे छोटे हिस्सों में भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी। दो बच्चे ही हम ज्यादा कुछ तो अभी एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। और टू स्टूडेंट्स, ओनली टू स्टूडेंट कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर थिंग्स। Shakti, you wanted to ask something? Yes, sir, I want to ask something. Yes, yes. Go Ma'am, ahead. regarding the issue of procrastination, ma'am, how to resolve the issue of how to overcome from procrastination, ma'am? इसके ऊपर हम, मैंने बताया ना, इनर सर्किल में हम जबरदस्त काम करने वाले हैं। लाइक वी आर गोइंग टू, मैंने बताया आपको, शायद आप पहली बार ज्वाइन की हो शक्ति, फर्स्ट टाइम। Yes, yes, ma'am, yes, ma'am. Actually, ma'am, I'm doing job in Indian Navy, ma'am. I didn't get time, ma'am, that time, so I missed that इट्स class. ओके, लेट इट बी, नो इशू। मैंने बताया था वी आर ऑल आर, पुष्पलता, डू यू रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड? वी ऑल आर Yes, बर्निंग ma'am. कोल्स। ठीक है, Yes. मैं सबको एक बर्निंग कोल समझती हूँ। एंड इस बर्निंग कोल में बहुत संभावनाएं होती है कि ये कोल ना थोड़ा कोल्ड हो रहा है, बट जब आप स्टीम में आओगे ना, तो एक बर्निंग कोल के साथ अब कोई भी कोयला ना मरा हुआ बुझा हुआ रह ही नहीं सकता है। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? वो अगर मरा भी है ना, तो थोड़ी देर बाद वो उस फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, इसके पूरे टूल एंड टेक्निक्स के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि अब इतने कम समय में हम सारी चीजें अभी नहीं जा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन फिनिश है। डेफिनेटली आई विल कंसीडर इट कमिंग सेशन, बट आप इस समय को इस्तेमाल करो अपने प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, सो दैट दैट हेल्प मी टू ब्रिंग दैट टॉपिक्स बिफोर यू, कि ना किस पे मुझे आपसे बात करनी है। सो जब मौका मिले मैं तो बोलती हूँ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो। जैसे अभी कंसिस्टेंसी का इशू था, मैंने उसको लाया, आज हमने इस पे डिस्कस किया एंड हमने प्लान बनाया। इट्स नॉट कि मैंने आज आपको सिर्फ एक कहानी सुनाई, भाषण दिया, लेक्चर दिया, इसके लिए तो यूट्यूब बड़ा पड़ा है, आप कहीं से जाओ वीडियो देखो। अगर काम वहीं से बन जाता तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहां पे तो अनलिमिटेड मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं। काम वहां से नहीं बन पा रहा है, तभी तो ऐसे फोरम की जरूरत पड़ रही है, जहां हमें 1 to 1 लगकर काम करना है। आपके साथ आपको बिठाना है, अपने साथ बैठना है। 11 अभी टाइमिंग वगैरह स्टिल टू बी डिसाइडेड, बच्चों के टाइमिंग प्रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। दिन में 2 घंटा आप हमारे साथ लिटरली बैठोगे। अगर 11 बजे से 11:05 के बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी, और पक्का, लेकिन ना एग्जाम्पल दे रही हूँ, 11 बजे कैमरा ऑन करके हमारे साथ ही बैठोगे। उसके पहले जो काम करना, उठना भी नहीं है आपको, वॉशरूम जानी है, अपनी पानी, अपनी बॉटल सब कुछ लेकर बैठना है। बट जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आई अंडरस्टैंड इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है। कभी फोन आ जाएगा, कभी एक नोट, कोई कुछ नोटिफिकेशन देख लिया, कुछ टच कर दिया, और वो पूरा टाइम चला गया। फिर आप वहां बैठोगे, टारगेट है क्या, 4 पेज पढ़ना है, पढ़ाई सिर्फ आपने 4 लाइनें करी होंगी, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है। ओवरवेल्म, कैसे पढ़ना है, इतना सिलेबस है, ये सोच सोच के आपने टाइम वेस्ट कर दिया, या कुछ और थॉट ने आपके माइंड को जकड़ लिया। यहाँ पर जब आप देखोगे ग्रुप में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पहले मैं आपको वार्म अप करूंगी, कुछ चीजें भी सिखाऊंगी, एक एक एनर्जी लेवल मेंटेन करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड। क्योंकि मुझे भी चैलेंज आता है, कितने भी टूल टेक्निक सीख लो, बट जब अकेले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो हम अप एंड डाउन चलता रहता है। एंड यू नो, आई ऑल्सो हैव माई कोच, मेरे साथ मेरी कोच लगी रहती है। ठीक है, तो दैट इज हर एजेंडा, मैं उसकी क्लाइंट हूँ एंड शी इज बिहाइंड मी। आप मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हो, अब मुझे आपके साथ लगना है। समझ रहे हो? मैंने लैक्स ऑफ रुपीज दिया है वो सिर्फ मेरे पीछे पढ़ने के लिए। डू यू, आप बिलीव करोगे, मेरे पीछे पड़े रहती है कि आपका ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपको ये अब तक करना है, जो भी मेरी चीजें चल रही हैं। तो अपने पीछे लगाया है मैंने पैसे देकर। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज दैट मच, यू आर स्टूडेंट।
बट लोग करते हैं। लाइफ कोचिंग का आपने नाम सुना है ना, लाइफ कोचिंग यही करती है। ये आपसे आपके काम को कराया जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी नहीं है, इश्यूज हैं, आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको आपके गोल तक पहुंचाना हमारा काम है। वी आर वर्किंग इन ए टीम। हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपके पीछे हैं। मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेंगे एक दूसरे को, क्योंकि मैं 24 आवर्स आपके पीछे नहीं रह सकती, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जॉब होगा वो आपको सुबह, अगर आपने टाइम डिसाइड किया कि हमें 5 बजे उठ के पढ़ना है, तो आपस में एक दूसरे को कॉल करके उठाओगे कि 5 बज गया है, कम ऑन, इधर कम ऑन कैमरा, कॉल करके बात करो। नींद नहीं खुल रही है, कॉल करो, क्योंकि स्नूज करके वापस सोते रहते हो। मैं भी करती हूँ। ठीक है, अलार्म लगाया, अभी आधा घंटा, मतलब सर्दियां आएंगी ना तब समझ में आएगा कि रजाई से निकलने का मन नहीं करेगा किसी को। पढ़ाई अभी रहने दो, आईएएस तो बाद में बनेंगे, आज का दिन तो जी लेने दो। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आने वाले हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स रियल है, फैक्ट हैं। कैसे ओवरकम करेंगे, तो उसका हम इंतजाम करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक एक आदमी खुद लगेगा, आपके फीडबैक लेंगे डेली बेसिस पर। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी गोइंग टू वर्क? ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है, करेगी? ये सब किए Yes, बगैर ma'am. आसानी से नहीं होता है। मैंने खुद, लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल, इतना स्टूडेंट लाइफ, इतनी सारी चीजें, आज का टारगेट मैंने रखा मुझे इतना ही करना है। लेकिन इस फेस्टिव सीजन का माहौल, जबकि ऐसा नहीं कि मेरे पास वो मैं कर नहीं सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, बट ये कभी किन किन चीजों में हमारा समय ना चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। अच्छी चीजों का ही करते करते जो हमारा मेन फोकस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट यही हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा होगा। मैं आपके लाइफ को पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर दैट सभी लोग इस चैलेंज से गुजर रहे होंगे। जो भी आप डेडलाइन रखोगे कि मुझे ये कंप्लीट करना है, डेफिनेटली वो मिस हो रहा होगा। जितना आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, और समय तो उतना ही है, 6 महीने ही मिलने वाले। ठीक है, नहीं तो फिर चले जाओगे अगले अगले सेशन में, एक अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर लो फिर। डिसीजन इज योर्स, यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा, डिसीजन आपका है, क्योंकि चैलेंज आपका है। अगर आप खुद से अपनी जर्नी तय करने के लिए तैयार हो, वेल एंड गुड, गो अहेड। लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इश्यूज हैं, कम विथ अस, ज्वाइन अस, लेट्स वर्क टुगेदर एंड गो अहेड। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव शेयर करना है, प्रॉब्लम शेयर करना है, एनीथिंग यू आर फ्री टू शेयर, गो अहेड। इतनी शांति। मेरे आई स्टूडेंट्स थिंक इतने ज्यादा मासूम है, पता ही नहीं था मुझे, इतने ज्यादा मासूम, हद से ज्यादा या मासूम। शायद ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया आज। No, अनिस- ma'am. Actually, I have a lot of things, but I am controlling myself because. But I just want to say कि it's like a energy boost for the week for me. What I learn, I try to apply and I try to analyze myself, so it is working for me. ग्रेट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि अगर आपने इस पे काम नहीं किया ना, तो ये ज्ञान की बातें आज हैं, कल शायद थोड़ी थोड़ी रहेंगी, और शायद तीसरे दिन ना कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये कौन था माइलो, कौन था वो कहानी, कौन थे ये पर्सनालिटी एनालिसिस, सारी चीजें ना धीरे धीरे आपकी मेमोरी से गायब हो जाएंगी। एंड यू आर गोइंग बैक टू एग्जैक्टली जैसे जिंदगी चल रही है ना। वो बंदर की जो है ना, बंदर ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है, वही करते करते वो चलता जाता है। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस डिस्ट्रैक्शन से। हमारे लास्ट कल भी मैंने ये बात बोली थी, हमारी एनर्जी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इस एनर्जी को हमें, हमारे पास टाइम भी 24 आवर्स लिमिटेड है, हमें इसको बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करना है। जितने भी अचीवर्स हैं, उनके पास अगर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग नहीं रहेगी, फॉर श्योर सक्सेस उनसे काफी दूर जाता रहेगा। लेट मी रिपीट दिस लाइन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो वी आर प्लानिंग हियर, कैसे स्ट्रेटेजिक होना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, स्ट्रेटेजी हमने बना रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने काफी बोल लिया है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलो, अदरवाइज यू कैन शेयर योर व्हाट एवर यू वांट टू शेयर टू प्रवास सर।
कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंज है, आपको रिपोर्ट के बारे में जानना है ज्यादा, तो या फिर मुझसे कनेक्ट करना है, यू वांट टू शेयर थिंग्स विद मी, देन यू कैन कनेक्ट विद प्रभास सर, ही विल गाइड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। प्रभास सर आपको कुछ बोलना है? सो नाउ वी कैन बाइंड अप। yes, if any student wants to यस, share हमारा it, टाइम भी हो रहा है। अगर आप अभी बताना चाहते हो तो बता दीजिए, अगर पर्सनली बताना है तो बता सकते हैं। बीट एनी इश्यूज, आप कोई भी इश्यूज पे बात कर सकते हैं। वी आर ओपन पीपल, वी डोंट की ना कि क्लोज माइंडेड हम लोग एकदम नहीं है। वी जस्ट कंसिडर एवरीथिंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड वी कीप द प्राइवेसी कंसर्न्स। अगर आपका हम समस्या शेयर करते हैं, वांट दैट इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन, वी टेक केयर ऑफ दैट। हम लोग हमेशा उस चीज का ध्यान रखते हैं उसका। Yes, definitely we take care of this. Confidentiality is one of the main key thing for any counselor. और हमारा इस एकलव्य का एक बहुत लाइक हमने इसको बहुत ध्यान से इस चीज को रखा है कि बच्चे अपने किसी भी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करते हैं, दैट विल बी विथ अस। किसी भी बच्चे से भी शेयर नहीं किया जाएगा। आपस में भी आपके नंबर्स आपको दिखते नहीं होंगे। वी डोंट वांट टू लाइक किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन इस प्लेटफॉर्म पे हो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट। वी वांट इवन वन सिंगल स्टूडेंट, हम उसके साथ भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्शन, अनफोकस्ड, किसी तरह का टॉक्सिसिटी यहाँ एड ऑन करने के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड डेफिनेटली आई विल, हमारा एक पॉइंट जरूर होगा, शायद आप कभी नहीं बोल पाते हो, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में हम डेफिनेटली एक क्लास मस्ट रखेंगे। आई नो, क्योंकि मेरे पास पर्सनल कॉल्स आते हैं एंड मेरा बच्चे शेयर मेरा करते हैं। मैसेजेस और कॉल्स भर जाता है ये वाले यस issues पे। करेक्ट। तो चूंकि आप बोल नहीं पाते हो इस ओपन फोरम में, बट आई नो मेनी आर गोइंग थ्रू, और अभी नहीं भी हो तो कब ये प्रॉब्लम किसके जिंदगी में आ जाता है, एंड लाइक पूरा कहाँ गया गोल, कहाँ गए बड़े बड़े सपने, मैम सब हवा। और मैंने अपने आंखों से बच्चों को ऐसी चीजों को मिस करते देखा है, लाइक रियली आई फील सो बैड कि बच्चा 12 महीने में 11 महीने बहुत जबरदस्त पढ़ा, लास्ट मिनट में लाइक 1 महीने में ऐसा कुछ होता है, एंड लाइक पूरा सिनेरियो लाइक बदल जाता है। कोई एंटर करती है या कोई करता है, और सारी चीजें हवा, और करना था क्या, कर रहा है कुछ, फिर एक अगले साल बैठकर उसके बाद क्या है, रोना है क्यों मैंने किया, बट समय तो चला गया ना, वो अटेम्प्ट तो आपका गया, आप मिस कर गए उस टारगेट को अर्जुन की तरह। आपको अगर फोकस नहीं हो तो मिस ही करोगे, तो फिर एक साल और पढ़ोगे, और फिर ना उस गिल्ट फीलिंग के साथ पढ़ोगे, वो जो एनर्जी है ना कहीं आपकी डाउन हो चुकी होती है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी जो हम मिशन पे है ना, उसके लिए तो मैं, आप मुझे अपने दुश्मन भी समझने लगोगे कुछ वक्त के बाद। लेट इट बी, नो इशू फॉर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आप में से कुछ एक बच्चे जो डेडिकेटेड है आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आई विल लाइक, मेरे लिए बहुत बड़ा ही अचीवमेंट होगा। ठीक है, सो आप मुझे अपना दोस्त समझो दुश्मन समझो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, तो हम बाइंड अप कर लें। Yes, ma'am. Thank you, everyone. If you या need anything and if you want to talk to ma'am or me, you can always contact us. See you in the next session on Sunday. Thank you, everyone. Good night. चलो, बाय बाय देन, गुड Bye. नाइट, टेक केयर। Thank you, Thank you, thank you, ma'am. sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much.